নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ বুলেটিন জব এণ্ড স্কিলছ ইনফো @18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী পুনতে আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো কোন বিভাগত কি পদ খালী হৈ আছে তাৰ কিছু তথ্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াম প্ৰথমে আহিছো আৰ্মি ইনষ্টিটিউট অফ নাৰ্ছিঙত খালী হৈ আছে পদ 10টা বিভাগত খালী হৈছে পদ গুৱাহাটী শাখাত প্ৰাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব চাকৰি আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 8 এপ্ৰিল IIT গুৱাহাটীটো কেইবাটা বিভাগত খালী হৈ আছে পদ আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 31 মাৰ্চ প্ৰাৰ্থীয়ে www.iitg.ac.in ত লাভ কৰিব সকলো তথ্য বিত্ত বিভাগত 20টা পদ খালী হৈ আছে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ল 13 এপ্ৰিল আৰু এই 20টা পদৰ ভিতৰত অসংৰক্ষিত 13টা এছচিৰ বাবে এটা এছটিপিৰ 4টা আৰু এছটিএইচ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 2টা পদ সংৰক্ষিত হৈ আছে আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীয়ে এপিএছচি ৱেবছাইটলৈ গৈ অনলাইন যোগে লগইন কৰি সকলো তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নৌসেনা বাহিনীৰ 1531টা পদ খালী হৈ আছে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হ'ল 22 মাৰ্চ মুঠ পদ 1531টা ইয়াৰ ভিতৰত অসংৰক্ষিত 697টা এছচিৰ বাবে 215টা এছটিৰ বাবে 93টা ওবিচিৰ বাবে 385টা আৰু আৰ্থিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে 141টা সংৰক্ষিত পদ আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীয়ে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব ধুবুৰীৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ কাৰ্যালয়ত 4টা পদ খালী হৈ আছে ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ বাবে খালী হৈছে 2টা পদ আবেদনকাৰীৰ বয়স 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে 22 মাৰ্চত বিলাসীপাৰাৰ ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেল কাৰ্যালয়লৈ যাব লাগিব অসম চৰকাৰৰ অধীনত পৰিচালিত অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগমত মুকলি হৈছে চাকৰি লাভৰ সুযোগ বিভাগটোত 6টা পদ খালী হৈ আছে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 28 মাৰ্চ CISF-ত 249টা পদত নিযুক্তিৰ জাননী হেড কনিষ্টেবলৰ 249টা পদ খালী হৈ আছে পদসমূহ স্পৰ্টছ কোটা 2021ৰ অধীনত পূৰণ কৰা হ'ব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 7 এপ্ৰিল অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 42টা পদৰ বিজ্ঞাপন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰৰ পদ খালী হৈ আছে দৰমহাৰ নিৰিখ 57700 টকাৰ পৰা 1,82,400 টকা অনলাইন যোগেও আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীয়ে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা পদ খালী ডেপুটি কন্ট্ৰোলাৰ অব এক্সামিনেশ্যনৰ পদ খালী হৈছে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 24 মাৰ্চ লখিমপুৰ জিলাৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতত 4টা পদ খালী আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 23 মাৰ্চ অফিচ পিয়নৰ 4টা পদৰ ভিতৰত এটা এছটি পি শ্ৰেণীৰ বাবে সংৰক্ষিত 18 বছৰৰ পৰা 43 বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পদত টুকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত নিযুক্তিৰ সুযোগ টুকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত ডিৰেক্টৰৰ পদ খালী হৈ আছে সবিশেষ জানিবলৈ লগইন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 31 মাৰ্চ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণত খালী পদ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ খালী হৈ আছে ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ পদ খালী হৈছে কপিষ্ট পদ এলডিএৰ পদ খালী হৈ আছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ পদ খালী চকীদাৰ আৰু অফিচ পিয়নৰো পদ খালী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জুলজি বিভাগত খালী হৈছে 3টা পদ প্ৰজেক্ট এছ'চিয়েট ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পদ খালী হৈছে প্ৰজেক্ট এছ'চিয়েট পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থী জুলজি লাইফ সায়েন্স বিষয়ত এমএছচি ডিগ্ৰীধাৰী হোৱাৰ লগতে ফিছ বায়'লজি আৰু ফিচাৰী সায়েন্সৰ বিষয়ত জ্ঞান থকা বাঞ্ছনীয় আমি এই বিশেষ বুলেটিন অব্যাহত ৰাখিম এটা সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকৰ বাবে আমি লৈ আহিম এটা বিশেষ শিতান গতিকে চাই থাকক আমাৰ এই বিশেষ বুলেটিন বিৰতিৰ পিছত আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ বুলেটিন আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো দুগৰাকীকৈ উদ্যোগী মহিলাক আমি পৰিচয় কৰোৱাই দিম আৰু তাৰ লগতে আমাৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী মুক্তাৰ আব্বাছ নাকভি ডাঙৰী আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম কিন্তু আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত থকা দুয়োগৰাকী উদ্যোগী মহিলাক আপোনাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছো আমাৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা আছে মিনু জৈন এগৰাকী উদ্যোগী মহিলা আপোনাক বহুত বহুত স্বাগত আৰু লগতে আমাৰ সৈতে আছে নলবাৰীৰ এগৰাকী উদ্যোগী
বাঁহ বেতৰ শিল্পৰ সৈতে জড়িত ৰুবি আহমেদ ডাঙৰীয়ানী। ৰুবি আহমেদ ডাঙৰীয়া, আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মই দিল্লীলৈ যাম। আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ মুক্তাৰ আব্বাছ নাকভি ডাঙৰীয়া। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट में। और पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हो न्यूज़ 18 आसाम की तरफ से। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और आपका, पूरी गुवाहाटी की जनता का, सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, मीडिया का, कि आपने मोर देन 30 स्टेट एंड यूटी से जो हमारे आर्टिजन, क्राफ्टमैन, कलाकार गुवाहाटी के इस हुनर हाट में आए हैं, उनको आपने इंकरेजमेंट दिया, उनकी हौसला अफजाई की, और एक बहुत ही जो हमारा स्वदेशी का से स्वावलंबन का संकल्प है, उस संकल्प को आपने स्ट्रेंथन किया है, मजबूती दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे 2016 में ये हुनर हाट जो एक ब्लेंड होता है कल्चर, क्विजिन और क्राफ्ट्स को एक साथ लाने का एक जो हाथ होता है, जो एक प्लेटफॉर्म होता है, 2016 में ये स्टार्ट हुआ था। 2016 से अभी तक जो सफर है, जो जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे। और इन लगभग 38 हुनर हाट के दौरान आप अगर देखें, अगर गुवाहाटी का मिला दें तो 8.5 लाख 8,50,000 से ज्यादा आर्टिजन्स, क्राफ्टमैन और उनसे रिलेटेड लोगों को एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हुनर हाट ने दी है जी। हुनर हाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल का एक जो कंसेप्ट है और जो कमिटमेंट है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है, उसको मजबूती दे रहा है। और आज मुझे जब बताया गया कि अभी तक जो गुवाहाटी में हुनर हाट हो रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पब्लिक आ रही है, लोगों की हौसला अफजाई कर रही है, खरीदारी कर रही है, इंजॉय कर रही है, तो अभी तक मुझे बताया गया कि अभी तक जब मैं आपके न्यूज़ 18 पे बात कर रहा हूं असम पे, तो अभी तक जो है वो 6.5 लाख से ज्यादा लोगों ने हुनर हाट में विजिट किया है। और मुझे हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल तक हुनर हाट चलेगा, रात तक, तो कल तक जो है वो 9 लाख के इर्द गिर्द लोग जो है वो हुनर हाट में विजिट भी करेंगे, खरीदारी भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। और गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम पीपुल्स प्रोग्राम बन जाए, पीपुल्स उसको जिस तरह से पार्टिसिपेट करती हैं, प्रमोट करती हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और लगातार हुनर हाट में ये दिखाई पड़ रहा है जी। सर, 2016 से अभी तक ये जो जर्नी आपने बताया कि करीब 8 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया है इस प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो हम जानना चाहेंगे, एनी काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म को आप जो प्लेटफॉर्म दिया है, तो हम जानकर खुशी है कि सर्कस को फिर से लाया गया है, सर्कस को फिर से एक प्लेटफॉर्म दिया गया है इस हुनर हाट की जो प्लेटफॉर्म है उसमें। तो उसके बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो हमारे आर्टिजन्स हैं वो देश के हर हिस्से में है। आपके नॉर्थ ईस्ट में देखें अगर आप, तो मणिपुर से लेकर के, आसाम से लेकर के, मेघालय से लेकर, त्रिपुरा से लेकर के, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां पर कि उसकी कला और कौशल से भरपूर न हो। लेकिन उनको मार्केट नहीं मिलता था, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि वो कहां बेचें, कहां पर लोगों के सामने को रखें। अभी जो है वो हुनर हाट हमारा जब पांडिचेरी में हो रहा था, तो इस नॉर्थ ईस्ट के तमाम आर्टिसंस के जो प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को उन्होंने वहां पर शोकेस किया और उसकी बिक्री हुई। हैदराबाद में जो हुनर हाट हुआ, मुंबई में जो हुआ, अभी इसके बाद जो है वो चंडीगढ़ में होने जा रहा है, पुणे में होने जा रहा है, या देश के अन्य हिस्सों में होने जा रहा है। तो देश भर के हर जगह के, हमने कहा ना, 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के आर्टिसन पार्टिसिपेट करते हैं। और जिस तरह का उनका अपना ये जो है, ये जो कला है, हमारी जो स्वदेशी कला है, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं लुप्त हो गई। आज हम फास्ट फूड के जमाने में चल रहे हैं। मेरा गांव मेरा देश का जो कंसेप्ट है कि हमारे देश का फास्ट फूड क्या है जी। हमारे देश के अंदर जो है वो फास्ट फूड को
किस तरह से वर्षों से हमारे देश में फास्ट फूड का जो संस्कृति है वो कैसी थी, लोग देखते हैं। हमारे देश में जो अलग अलग खान पीन है, लोग खाने पीने का जो कल्चर है उसको लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और साथ ही साथ जो है कल्चरल इवेंट, हमारे देश में जो कलाकार हैं, जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, उनसे वो भरे पड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था जो प्लेटफॉर्म की उनको जो है वो उनके जो प्रदर्शन कला है उसको सही जगह पे प्रदर्शित कर सके। और जो ये जो दस्तकार शिल्पकार आते हैं, इनसे हम कोई पैसा नहीं लेते, बल्कि इनको हम पैसा देते हैं। जो उनकी बिक्री होती है वो अलग है, लेकिन उनको टीएडीए भी मिलता है, उनको फ्री स्टाइल भी मिलता है, उनको सभी तरह की और भी सुविधाएं देते हैं। और कितने ये दस्तकार हैं जिनके जीवन को इस हुनर हाट ने क्रांतिकारी परिवर्तन उनके जीवन में लाया है, उनके परिवार के जीवन में लाया है। जी, अभी भी ऐसा बहुत लोकल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन है जो इस टाइप की प्लेटफॉर्म की तलाश में है, जैसे हुनर हाट जैसा प्लेटफॉर्म मिले उनको। तो एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म जो इस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म की तलाश में है, क्या उनको मौका मिलेगा? खास करके आसाम और नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमारा अभी आपका जो असम में हुनर हाट चल रहा है, उसमें हम ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। जो कलाकार जिन्होंने कि अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वैसे तो ऑनलाइन है, मोबाइल ऐप पे रजिस्ट्रेशन है, कोई भी अपना लेटर भी भेज देता है तो उसको भी हम रजिस्टर्ड करते हैं, उसका पैसा कोई नहीं लेते, वो रजिस्ट्रेशन उसका होता है, उसकी डिटेल, उसका विलेज कौन सा है, गांव कौन सा है, उसका प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीजें हैं। और आपको ये अभी तक जो हमने ये रोजगार दिया उसमें मोर देन 50% वीमेन एंड वीमेन सेल्फ ग्रुप से जुड़े हुए महिलाएं हैं, जो कि इसमें जो है वो अपने हिस्सेदारी भागीदारी कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मिशन है, और हमारे जो दस्तकार शिल्पकार, उनके प्रिजर्वेशन का, उनके प्रमोशन का, उनके प्रोटेक्शन का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। बल्कि ये हुनर हाट जो है वो हमारे दस्तकारों शिल्पकारों का एम्पावरमेंट एक्सचेंज है। जी, खास करके असम और नॉर्थ ईस्ट के लोकल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन को ज़्यादा मौका मिले, हमारी तरफ से ये आशा रहेगा, हमारी तरफ से एक्सपेक्टेशन रहेगा। और साथ ही आपको एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि असम और नॉर्थ ईस्ट में से ऐसे क्राफ्ट्समैन और लोकल आर्टिसंस को थोड़ा ज़्यादा मौका मिले, ऐसा हमारा थोड़ा एक्सपेक्टेशन है। उसके बारे में क्या बताओगे आप? मैं आपको न्यूज़ 18 असम पे मैं आपको जो है वो वादा करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के, असम से सहित नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जितने भी आर्टिजन क्राफ्टमैन हैं, उनको अभी हम मौका दे ही रहे हैं, और आगे भी ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। और अगली बार हम कब तक आशा कर सकते हैं? हमारा एक्सपेक्टेशन अभी भी है, तो अगली बार कब होगा हुनर हाट असम में? अब जल्दी हम करेंगे, अभी क्योंकि इसके बाद फौरन जो है वो अबाउट 25 से चंडीगढ़ में होने जा रहा है, उसके बाद जो है वो पुणे में होने वाला है, मुंबई में होने वाला है, जयपुर में होगा, इंदौर में होगा, दिल्ली में होगा, अभी सभी जगहों पे होगा। फिर हम बैक होकर के इतनी सुंदर और इतना अच्छा लोगों का प्यार और इतना अच्छा रिस्पांस हमारे आर्टिजन्स और क्राफ्टमैन को मिला है कि बहुत खुश हैं सब लोग, और जल्दी जो है वो फिर से हम हुनर हाट आएंगे। इतनी सुंदर, इतने अच्छे लोग हैं असम के, नॉर्थ ईस्ट के। केवल मैं तो देख रहा था, मुझे जानकारी दी गई कि केवल असम के लोग नहीं थे, बल्कि आसपास के नागालैंड से लोग आए, इसमें मणिपुर से आए लोग, मेघालय से आए, मिजोरम से आए, शिलोंग से, अलग अलग हिस्सों से, पूरे नॉर्थ ईस्ट से लोग इस हुनर हाट में आए, एंजॉय भी किया, खरीदारी भी की, और लोगों का इंकरेजमेंट भी किया जो आर्टिजन्स हैं। जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आने वाले दिनों में क्या क्या प्लान है हुनर हाट को लेकर? आने वाले दिनों में हमारी कोशिश है कि जो हम आज़ादी का 75th ईयर मना रहे हैं, उसमें हम 75 हुनर हाटों का क्रम कंप्लीट करें, और कंप्लीट करके हमारी कोशिश होगी कि हम 17 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को उपलब्ध करा सकें, और
और मुझे विश्वास है कि हम इस काम में सक्सेसफुल होंगे। और इसमें असम का भी बहुत बड़ा योगदान है, आपका भी, मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं देख रहा था, मैंने कई बार जो है वो देखा कि जो असम का हमारा न्यूज़ 18 है, उसने जो है वो बहुत अच्छी तरह से हुनर हाट का कवरेज किया जी। आपका बहुत अच्छी तरह से वहाँ के जो हमारे आर्टिजन्स हैं, क्राफ्टमैन हैं, उनके इंटरव्यू लिए, जो लोग आए हैं। मैंने एक चीज और इम्पोर्टेंट है, सर्कस जो इस देश में खत्म हो गया था जी। हमने पिछले करीब 6-8 महीने पहले हमने सोचा कि सर्कस गया कहां। तो मुझे आपको खुशी होगी कि जो हमारे सर्कस में आर्टिस्ट हैं उसमें मोर देन 50% नॉर्थ ईस्ट के आर्टिस्ट हैं जी। हाँ। हमने जब उनको तलाश किया कि वो परिवार है कि नहीं है, तो पता लगा कोई मणिपुर में मिला, कोई मेघालय में मिला, कोई नागालैंड में मिला, और कोई साउथ में मिला, केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। सबको मिला करके सर्कस का भी जो कार्यक्रम होता है, वो बच्चे भूल गए थे कि सर्कस भी अब होता है कि नहीं होता। तो वो भी एक हम जो हमारा कला और कौशल है, जो छिप गई थी, जिसको लोग भूल गए थे, उसे लोगों के सामने लाना, उसको याद कराना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपका ये कीमती वक्त हमें दिया, या हमारा लोकल आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को आपने इंस्पायर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। हमारा उम्मीद फिर से रहेगा कि असम और नॉर्थ ईस्ट में से ज्यादा लोकल आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को मौका मिले, ये उम्मीद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा मिलेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। और এইখিনি মুহূৰ্তত মই ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিম, যিহেতু আমি কৈছোঁ যে দুগৰাকীকৈ উদ্যোগী মহিলা, সফল উদ্যোগী মহিলা, যি হুনাৰ হাতত অংশগ্ৰহণ কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে, বেলেগক সংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে, নিদৰ্শন দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কেনেদৰে আত্মসংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰি। আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। আমাৰ সৈতে আছে দিল্লীৰ পৰা মিনু জৈন, আৰু আমাৰ অসমৰ নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ সৈতে আছে ৰুবি আহমেদ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত। মই মিনু জৈনৰ কাষলৈ প্ৰথমে আহিম। মিনু জৈন जी, आपसे हम जानना चाहेंगे 2016 से अभी तक कितने हुनर हाट में आपने पार्टिसिपेट किया, और आपका जो ये सफलता का जर्नी है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। नमस्कार गुवाहाटी, ये मेरा 24 से 25वां हुनर हाट है, और अभी तक मेरे को हुनर हाट से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और बहुत प्यार मिला है, और मैंने बहुत अच्छा अर्न किया है हुनर हाट से। आपका चाट की शॉप है जी, मेरा दिल्ली की चाट की शॉप है, जिसमें गोलगप्पे, पापड़ी चाट, आलू टिक्की, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है सबके, तो उसी चीज का मेरा शॉप है। हम भी टेस्ट करने के लिए आएंगे जी सर, मोस्ट वेलकम। और मेरा पूरा गुवाहाटी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और दर्शकসকলক মই এইখিনিতে কৈ থওঁ যে মিনু জৈন এগৰাকী উদ্যোগী মহিলাই নিজৰ পুত্ৰক उच्च शिक्षार বাবে লন্ডনলৈ পঠিয়াইছে, লন্ডনত শিক্ষা গ্রহণ কৰি আছে তেওঁৰ পুত্ৰ। उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। आपकी बेटा लंदन में हायर एजुकेशन के लिए गया है, ये हुनर हाट का ही मतलब हाँ सर, योगदान है? जी बिल्कुल, हुनर हाट का योगदान है। मैं अपने बेटे को इंजीनियरिंग करा पा रही हूँ लंदन से। मैंने घर लिया था, घर की किस्तें मैं नहीं चुका पा रही थी, और हुनर हाट के चलते मैंने 1 टाइम में ही अपना पूरा लोन क्लियर कर दिया, और आज मैं अपने घर पे बैठी हूँ, मेरा उस पर कोई लोन नहीं है और किसी का कोई मतलब नहीं है उससे। और ইয়াতকৈ ডাঙৰ লাইভ এক্সাম্পল আৰু কি হ'ব পাৰে? এয়া আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডিঅ'ত হুনাৰ হাটত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ পুত্ৰ সন্তানক লণ্ডনলৈ পঠিয়াইছে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে। মই ৰুবি আহমেদ ডাঙৰীয়ানী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। বাঁহ বেতৰ শিল্পৰ সৈতে আপুনি জড়িত, কেনেদৰে আপুনি সংযুক্ত হ'ল হুনাৰ হাটৰ সৈতে? নমস্কাৰ, আপোনাৰ হেৰি চেনেলটোৰ কাৰণে, মোৰ আহাৰ কাৰণে, জাগা দিয়াৰ কাৰণে, টাইম দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ। ভাল খবৰ। আমি বহুত মেহনত কৰিছোঁ। আগতে আমি হুনাৰ হাটত চান্স পোৱা নাছিলোঁ, যেতিয়াৰ পৰা পাইছোঁ বহুতে সুবিধা পাইছোঁ। সুযোগটো কেনেদৰে লাভ? মই অনলাইনত কৰিছিলোঁ, অনলাইনত ফৰ্ম ভৰাইছিলোঁ, কিন্তু হোৱা নাছিলে। একদিন মই দিল্লীত একবাৰ এক্সিবিশ্যনত গ'লোঁ, যাই হুনাৰ হাটৰ তাত যাই মই ক'লোঁ যে মই অনলাইন ভৰাইছোঁ, পোৱা নাই। তাৰপিছত মই যেতিয়া ক'লোঁ পুৰা কাহিনী, যে আমি বহুত মানুহ, দুখীয়া দুখীয়া মানুহক লগত লৈ আমি এইবিলাক বস্তু বনাওঁ, বাঁহ বেতৰ বস্তু বনাওঁ, বেচিবলৈ জাগা দিব লাগে। তাৰপিছত ক'লে ঠিক আছে, তোমাক মই দি দিম আহা মাহত। তাৰপিছত মোক দিলে হায়দৰাবাদত। হায়দৰাবাদত মই গ'লোঁ, বহুত ৰেচপন্স পালোঁ, ভাল পালোঁ। তাৰপিছত মোক দিলে ইয়াতে গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীতো এতিয়া বহুত ভাল চেল। লকডাউনৰ সময়ত বহুত মাল আমি বনাইছিলোঁ, বহুত দুখীয়া দুখীয়া মানুহে আমাৰ লগত জড়িত আছে। সেইবিলাক মানুহ মাল বনাই বনাই বেচিবৰ জেগা পোৱা নাছিলে। যেতিয়া হুনাৰ হাটে আমাক জেগা দিলে, মালবিলাক বেচিলোঁ, বহুত ভাল পালোঁ। এই আমাৰ প্ৰফিট হৈছে, বহুত প্ৰফিট হৈছে। মোৰো ছোৱালী দিল্লীত পঢ়ে, ফাইন আৰ্টত পঢ়ে, ললিত কলাত।
হয়। গতিকে মই এই কাম কৰি পঢ়াই আছো নিজেই তাৰমানে আমি মেহনত কৰিছো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আপুনি এয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে আগতে মই এক্সিবিশনত যাওঁ এক্সিবিশন কৰো আমাৰ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিসকল থলুৱা আৰ্টিজেন্স আছে বা ক্ৰাফটছমেন আছে তেওঁলোকে কেনেদৰে এই সুযোগটো লাভ কৰিব আপুনি যেনেদৰে গৈছে সেইখিনি যদি অকনমান কৈ দিয়ে মই অনলাইনতে কৰিছিলো অনলাইন কৰিছিলো কিন্তু মোৰ আহা নাছিল নাম আহা নাই কিন্তু বেলেগ বেলেগ মানুহৰ আহে মোৰ পাই মাল লৈ যায় যাই দেছে যাই একদিন মই সোণাৰতৰ অফিচত কলো যে মোৰ এতিয়ালৈ নাম আহা নাই মই ইমান বাৰ অনলাইন ফৰ্ম ভৰাইছো তেতিয়া মোক লিখি দিলে যে এইবাৰ পাক্কা আহিব কি ক'ত কৰিবা হায়দৰাবাদ কৰিবা না ইয়াতে কৰিবা পণ্ডিচেৰীত তেতিয়া মই ক'লো যে পণ্ডিচেৰীৰ কাৰণে নহ'ব মোৰ ছোৱালীৰ পৰীক্ষা কি মই হায়দৰাবাদত কৰিম তাৰপিছত মই হায়দৰাবাদ গ'লো হায়দৰাবাদত বহুত ভাল চলিছে যি মাল লৈ গৈছে চব খতম হৈ গৈছে তাৰপিছত মই ক'লো ছাৰক যে মোক গুৱাহাটী আমাৰ অসমৰে আমাৰ নিজৰ জাগা ইয়াতো চান্স দিয়ক তাৰপিছত মোক চান্স দিলে এতিয়াও মোৰ ভাল চেল হৈ আছে আৰু মোক ছাৰে দিছে আৰু এইবাৰ চণ্ডীগড়তো দিছে মই 25 তাৰিখৰ পৰা চণ্ডীগড়ত যাম जी मीनू जैन जी फिर क्या कहेंगे हमारा जो लोकल आर्टिजन्स है क्राफ्ट्समैन है उनको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले आपसे क्या कहेंगे उनको सर मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि हमारे अंदर स्किल है और हमारे को हम धन्यवाद करते हैं हमारे श्री माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया और हमें हमारा स्किल निकालने का एक जरिया दिया और मैं अपने जैसे आर्टिजन से भी यही कहती हूँ कि आप आइए आप अपना फॉर्म भरिए आपको यहाँ पे चांस मिलेगा और आप यहाँ पे हमेशा सक्सेस ही होके जाएंगे आप यहाँ से निराश नहीं जाएंगे আৰু হেকত ৰবি আমি কি ক'ব আপুনি এই আগতে যেতিয়া যি কংগ্ৰেছ আছিলে হেৰি আছিলে কোনোদিন এই আমাৰ কাৰণে আৰ্টিজনৰ কাৰণে চিন্তাই কৰা নাছিলে এই মোদী ডাঙৰে যেতিয়াৰ পৰা আহিছে এই সোণাৰ হাত আগুৱাই লৈ আহিছে তাৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ সুবিধা হৈছে আমাৰো সেইটো মকা পাইছো আৰু বেলেগো মকা পাব ভাল সবেই মেহনত কৰিব লাগে আগুৱাই আহিব লাগে আমাৰ অসমৰে উন্নতি হ'ব सब মানুহ मैं आपसे लास्ट जानना चाहेंगे खासियत क्या है आपका वो शॉप की सर एक्चुअली मेरे पास जो गोलगप्पे टिक्की चाट वगैरह है देखिए इंग्रेडिएंट्स तो हम लोग यहीं से ही लेते हैं बट जो मेरी रेसिपी है उसको जो हम बनाते हैं मसाले मैं हमेशा सारे दिल्ली से ही लेके चलती हूँ और उन मसालों को भी उसमें कुछ नया बन लेकर के आकर के मैं वो चाट बनाती हूँ जो वो चाट लोगों को बहुत पसंद आती है और मेरे पास गुवाहाटी में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रिपीट कस्टमर ही हैं और जो आके खा भी रहे हैं और पैक करा करके भी लेकर के जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप आते रहिए यहाँ पे और हम तो ये कह रहे हैं कि आप यहीं रह जाइए तो हमने बोला कि देखिए हम यहाँ तो नहीं रह सकते लेकिन हाँ हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आते रहें कह रहे हैं हमें बहुत पसंद आ रहा है और हमारा मन करता है कि हम यहाँ से नहीं जाएं और हमें हुनर हाट बहुत पसंद आ रहा है बहुत बहुत शुक्रिया हमारा स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद জনাইছো ৰবি আহমেদ ডাঙৰীয়ানে আপোনাকো আৰু এনেদৰে আপোনালোকে দেখিলে যে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত হুনাৰ হাতত অংশগ্ৰহণ কৰি কেনেদৰে আত্মসংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে নিজৰ সন্তানক বিদেশত পঢ়িয়াবলৈ বা বহিৰাজ্যত পঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে উচ্চ শিক্ষা দিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এনেকুৱা এটা বৃহৎ প্লেটফৰ্ম এই হুনাৰ হাট আৰু এই বৃহৎ প্লেটফৰ্মৰ যোগেদি আপোনাৰ টেলেণ্ট প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ শিল্প দাঙি ধৰিব পাৰিব আৰু এনেদৰে আপুনি সংস্থাপনৰ বাট মুকলাব পাৰিব এয়াই হৈছে হুনাৰ হাট এয়াই হৈছে হুনাৰ হাটৰ বিশেষত্ব আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছো আজি আমাৰ এই বিশেষ বুলেটিন নমস্কাৰ